Hello students. Today we are going to begin one of the most influential topic, figures of speech. I am sure you must have come across this topic in 9th and 10th. Popularly in Marathi or Hindi, they are called as Alankar. Am I right? So let's start figures of speech. Let me clear firstly, what is meant by figures of speech? Here, my dear student, definition is visible. From that, I will explain actually what is figure of speech. Okay, figure of speech is a poetic device in which simple expression is conveyed in a sophisticated manner. Let me clear. आपको मालूम है there are two types of language. दो टाइप की लैंग्वेज होती है. One is common, second is uncommon. Am I right? For example, शिवाजी महाराज बहुत मीन्स व्हाट आई मीन टू से शौर्य से लड़े. प्लीज डाइजेस्ट माय हिंदी समवॉट. सिंपल लैंग्वेज. वही बात शिवाजी महाराज शेर की तरह लड़े. दैट इज फिगर ऑफ स्पीच. इंटरेस्टिंग. यस. वो लड़का बहुत फेयर है. सिंपल लैंग्वेज. वही बात वो लड़का तो बस गुलाब की तरह है. ये फिगर ऑफ स्पीच है. करेक्ट. वही बात कॉमन बात अनकॉमन वे से जब एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिगर्स ऑफ स्पीच. एम राइट? वन मोर. लता दीदी बहुत ही बढ़िया गाते हैं. सिंपल लैंग्वेज. बट वही बात लता दीदी तो कोयल की तरह गाते हैं. ये फिगर्स ऑफ स्पीच. इंटरेस्टिंग. मैं बहुत जोर से भागा. सिंपल लैंग्वेज. वही बात मैं तो मशीन की तरह भागा. ये फिगर ऑफ स्पीच है. ये फिगर ऑफ स्पीच है. करेक्ट. वही बात थोड़ा सा मींस डिफरेंट वे. क्या भागा मैं, बाप रे बाप. सिंपल. ऐसे भागा जैसे मैं हवा से बात कर रहा हूं. दिस इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच. कहने का मतलब क्या है? कॉमन बात व्हेन अनकॉमन टाइप से, अनकॉमन वे से बोली जाती है, सॉफिस्टिकेटेड वे से बोली जाती है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज फिगर ऑफ स्पीच. My dear, actually in English lecture I should speak completely English, but there are many medium students are there. Sometime Marathi medium, sometime semi English medium, some students from CBSE. So all medium students are here in 12th or maybe concerned high school. That's why sometime I have to use Hindi so that understanding should be clear. Okay, so once again what is figure of speech? Figure of speech is a poetic device. A poetic device है in which simple expression, common expression is expressed in uncommon way or maybe sophisticated way. वही बात थोड़ा uncommon way से जब बोली जाती है, that is called figure of speech. In short, figures of speech beautify the language. Language को beautify करते हैं, बढ़िया बनाते हैं. अलंकारिक भाषा. अलंकारिक भाषा समझो. एक बच्चा बोल रहा है अपनी माँ से. एक बच्चा अपनी माँ से बोल रहा है, माँ मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं. इट्स कॉमन लैंग्वेज. वही माँ मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा. फिगर्स ऑफ स्पीच. इंटरेस्टिंग. सो कॉमन बात व्हेन अनकॉमन टाइप्स मींस वे से कही जाती है. इन फिगर ऑफ स्पीच कॉमन लैंग्वेज इज एक्सप्रेस्ड इन एन अनकॉमन वे, sophisticated way, and figures of speech beautify the language. So my dear, this is the definition of figure of speech. I hope that you must have understood. Okay, chalo let's start. Now we'll go for different figures of speech step by step. Be ready friends? Ready? Now first figure of speech, simile. My dear, very simple. Simile means similar, like that. Simile means similar, like that. Is it clear? Yes. अब देखो बेटा, in simile there is a direct comparison between two different things having similar qualities or quality. Simile में क्या होता है? दो different thing में कंपेरिजन होता है जिनकी क्वालिटी सेम होती है. I repeat, two different things. दो different thing में कंपेरिजन होता है जहां पे क्वालिटी सेम होती है. नहीं समझे? I will explain again. From example you will come to know. अब देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज fought like a lion. यहां पे क्या हो रहा है? There is comparison between छत्रपति शिवाजी महाराज
एंड लॉयन हैविंग सिमिलर क्वालिटी ऑफ फाइटिंग। कंपेरिजन किसमें हो रहा है? छत्रपति शिवाजी महाराज में और लॉयन में, और क्वालिटी कौन सी है? सेम, फाइटिंग की। सिमिलर, इंटरेस्टिंग। बट ये सिमिलर नहीं हो सकता कि छत्रपति शिवाजी महाराज फॉट लाइक दैट किंग। देयर शुड बी कंपेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग। दोनों भी डिफरेंट थिंग चाहिए, जहां पे क्वालिटी सेम होना चाहिए। इज इट ओके माय डियर? आई रिपीट, in simile there is a direct comparison between two different things. This point to be noted, between two different things having similar quality. Okay, और सिमिली पहचाना बहुत ईजी बेटा। जनरली कंपैरिजन किसमें आता है? लाइक और एजेस में होता। कंपैरिजन हाउ दे आर एक्सप्रेस? लाइक एंड एजेस। सो वंस अगेन आई रिपीट, दो डिफरेंट बातों में, थिंग्स में और पर्सन में, कभी कभी पर्सन एंड थिंग में कंपैरिजन होता है, जहां पे उनकी क्वालिटी सेम बताई जाती है। लेट्स से मोर एग्जांपल, यू विल कम टू नो। ही रैन लाइक अ पैंथर। यू नो पैंथर, चीता एंड ऑल दैट। मींस देयर इज कंपैरिजन बिटवीन द पर्सन एंड पैंथर हैविंग सिमिलर क्वालिटी ऑफ रनिंग। दोनों में सिमिलर क्वालिटी कौन सी है? रनिंग की है। और कंपैरिजन किसमें है? पर्सन और पैंथर में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, लता दीदी सिंग्स लाइक कुक्कू। अब यहां पे समझ में आ जाएगा आपको। देयर इज कंपैरिजन बिटवीन लता दीदी एंड कुक्कू। There is comparison between Lata Didi and Coco having similar quality of singing. ये सिमिलर नहीं हो सकता कि लता दीदी sings like आशा भोसले. No. There should be comparison between two different things. I repeat, two different things. अब देखो, लता दीदी and Coco different things and quality same, singing. अब देखो, like, as, I think that there are less example of as, but I will give you. No problem. Next, this cloth is here as is there. This cloth is as white as a snow. अब देखो, cloth and snow दोनों भी अलग है, करेक्ट, बट क्वालिटी कौन सी सेम है? व्हाइट। इज इट क्लियर? सिमिली में जनरली कंपल्सरी लाइक एंड एज आना चाहिए। इज इट ओके? नेक्स्ट वन, I wander like a cloud. Comparison between I and cloud. I and cloud are different things, but wandering is the same quality. Okay, my dear. Next, life is like a journey. Comparison किसमें है? Life and journey में, because they have same appearance, same qualities there. Is it okay? अब क्वेश्चन ऐसा आता है, he dances like a peacock. तो कैसे लिखना है एग्जाम में? नेम एंड एक्सप्लेन। नेम लिखो पहले। अब देखो, कंपेरिजन किसमें है? द पर्सन और पीकॉक में है। क्वालिटी सेम कौन सी है? डांसिंग की है। नो प्रॉब्लम, पहले नाम लिखो सिमिली, और लिखना कैसा? हियर देयर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द पर्सन एंड पीकॉक हैविंग सिमिलर क्वालिटी ऑफ डांसिंग। आई विल राइट हियर हैविंग सिमिलर क्वालिटी ऑफ डांसिंग। बस, having similar quality of dancing. I hope that you must have understood. Correct? Can I repeat once again? Now in English. In simile, there is a direct comparison between two different things having similar quality. And generally simile expressed with expression of like and as. सिमिली में कंपल्सरी like and as आना चाहिए। For example, छत्रपति शिवाजी महाराज fought like a lion. Comparison between छत्रपति शिवाजी महाराज and lion, similar quality, fighting. He ran like a panther. Comparison between person and panther, similar quality of running. Next, Lata Didi sings like cuckoo. Lata Didi and cuckoo comparison, similar quality, singing. This cloth is as white as snow. Comparison between cloth and snow having similar quality of whiteness. I wandered like a cloud. Comparison between I and cloud having similar quality of wandering. Life is like a journey. Comparison between life and journey, similar quality of like appearance. He dances like a peacock. Comparison between person and peacock, similar quality, dancing. Is it clear? Is it clear? So this is the first figure of speech named simile. I hope that you must have understood. Okay? Yes, please. Thank you. Next figure of speech. Let's start.
Welcome to the second figure of speech, metaphor. Do you remember in simile what happened? In simile, there is a direct comparison between two different things. अब यहां पे simile का थोड़ा सा अपोजिट, यहां पे indirect comparison. I will explain. Sorry. लता दीदी कोयल की तरह गाती है, ये सिमिले है, उनकी तरह गाती है, सिमिलर. बट वही बात, लता दीदी तो भारत की, हिंदुस्तान की कोयल है, ये मेटाफर. उनकी तरह गाते हैं, दैट इज सिमिले. उनकी तरह नहीं, कोयल है हमारे लिए, दैट इज मेटाफर. तानाजी शेर की तरह लड़े, यू नो तानाजी मालुसरे, कोंडाना, सिंहगढ़. यस, तानाजी मालुसरे शेर की तरह लड़े, ये सिमिली. शेर की तरह नहीं, उस लड़ाई में वो शेरिस थे, ये मेटाफर. इंटरेस्टिंग. लाइफ इज लाइक अ जर्नी, जिंदगी तो एक सफर की तरह है, ये सिमिली. सफर नहीं, जिंदगी एक सफर है, सुहाना. राइट. हाँ, ये मेटाफर है. उनकी तरह मीन्स सिमिली, उनकी तरह नहीं, वही है, दैट इज कॉल्ड मेटाफर. इंटरेस्टिंग. वन मोर. बुक्स तो हमारे लिए भगवान की तरह है, भगवान की तरह मीन्स सिमिली, भगवान की तरह नहीं, बुक हमारे लिए भगवान ही छे, दैट इज मेटाफर. I hope that you must have understood the difference between simile and metaphor. Simile में क्या होता है? उनकी तरह नहीं, वही छे, that is metaphor. Correct? जिंदगी खेल की तरह है, simile. जिंदगी खेल है, ये metaphor. Correct? So उसकी तरह means simile, उसकी तरह नहीं, वही है, that is called metaphor. I hope that you must have understood the difference between simile and metaphor. डेफिनेशन क्या है मेटाफर के? हियर देयर इज एन इनडायरेक्ट और इंप्लाइड कंपैरिजन. इनडायरेक्टली वही है, उसकी तरह नहीं, इनडायरेक्टली वही है. यस, कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग हैविंग सिमिलर क्वालिटी. यहां पे भी दो डिफरेंट थिंग में कंपैरिजन होता है, दो डिफरेंट थिंग में कंपैरिजन होता है जिनकी क्वालिटी सेम होती है. सिमिली और मेटाफर में कंफ्यूजन नो कंफ्यूजन. सिमिली में उसकी तरह नहीं, वही है, दैट इज कॉल्ड मेटाफर. मैं एग्जांपल देना आपको. तानाजी मालुसरे शेर की तरह लड़े, दैट इज सिमिली, उसकी तरह लड़े, लेकिन वो शेरिस थे, ये मेटाफर है. सो मेटाफर में क्या होता है? कंपैरिजन होता है, लेकिन इनडायरेक्टली वही है. यस. और सिमिली में क्या होता है? उसकी तरह नहीं, वही है. यस. नेक्स्ट, अब देखो, देयर इज एन implied means indirect comparison between two different things having similar quality. दोनों different thing में comparison, लेकिन quality same. Is it clear? Yes. Now life is a journey. सिमिल में क्या था? Life is like a journey. Life is a journey. उसकी तरह नहीं, which तानाजी was the lion in that fight. सिमिल में क्या था? तानाजी fought like a lion. Tanaji was the lion. Next, लता दीदी is the cuckoo of India. सिमिले में क्या था? लता दीदी sings like cuckoo. She is the cuckoo only. मेटाफर में indirectly वही है. Books are like God. सिमिले में, यहां पे नहीं, books are God. Do you understand difference? सिमिले means, मेटाफर means. Next, ministers are the pillar of the state. If I say ministers are like pillar of the state, simile. उसकी तरह नहीं, ministers are the pillar. He was the cheetah in that running. सिमिल में क्या था? He ran like cheetah. He was the cheetah in that running. उसकी तरह नहीं, which? Roads are the blood vessel of a city. Roads are like blood vessel of a city. They are the blood vessel only. Okay? Life is a game. सिमिल में क्या था? Life is like a game. Life is a game. तो एग्जाम में क्वेश्चन आने के बाद क्या लिखने का? मेटाफर, और रीजन लिखना पड़ेगा आपको. व्हाई मेटाफर? हियर देयर इज एन इंप्लाइड कंपैरिजन बिटवीन लाइफ एंड गेम हैविंग सिमिलर क्वालिटी. ऐसा आपको लिखना पड़ेगा. इज इट ओके? डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर? इन सिमिली, मेटाफर, यस, उसकी तरह मीन्स सिमिली, उसकी तरह नहीं, वही है, दैट इज कॉल्ड मेटाफर. I hope that you must have understood. Simile, direct comparison. Here,
इनडायरेक्टली वही है. ओके, आई होप दैट यू मस्ट अंडरस्टूड. लेट्स मूव टू नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच. हाइपरबोल. वेरी सिंपल. आपको मालूम है कुछ लोग बहुत एक्स्ट्रा बात करते हैं. एक्स्ट्रा मीन्स टू मच एक्स्ट्रा. दैट एक्स्ट्रा बात मीन्स हाइपरबोल. आप देखो ना, कुछ लोग ऐसा सांप देखा, बाप रे, यहां से वहां तक, कहां तक ही मालूम नहीं. हाइपरबोल. सो सिंपल डेफिनेशन क्या है? हाइपरबोल, हाई बोल, लिमिट से ज्यादा बोल, एक्स्ट्रा बोल, बहुत एक्स्ट्रा बोल, हाइपरबोल. इज इट क्लियर? यस. सो इन हाइपरबोल व्हाट हैपन? देयर इज एन ओवर स्टेटमेंट. कुछ बातें ओवर बोली जाती है. आप घर में देखो ना, सर्टन हाउस में मम्मी और पापा से एक नहीं, दो नहीं, तुझे 1000 बार बोला. 1000 बार बोलते हैं क्या? बोलने की बात है. करेक्ट. कुछ लोग देखो, ऐसा मारूंगा पूरी 32 ही बाहर आ जाएगी. पॉसिबल है क्या? बोलने की बात है. आपकी उम्र ऐसी है, लात मारने के बाद पानी निकलता है. निकलता पानी? नो. सो कहने का मतलब क्या है? कुछ बातें एक्स्ट्रा बोली जाती है. तो डेफिनेशन क्या है हाइपरबोल की? हाइपरबोल, हाई बोल, एक्स्ट्रा बोल, लिमिट ज्यादा बोल, बहुत एक्स्ट्रा बोल, हाइपरबोल. ओके, यस. अब देखो, हियर देयर इज एन ओवर स्टेटमेंट. ओवर एंड द आइडिया इज एग्जैगरेटेड. और आइडिया कैसी एग्जैगरेट की होती है? एग्जैगरेट मीन ज्यादा. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू टच द स्काई. कुछ लोग बोल देना, आसमान छूना चाहता हूं. पॉसिबल है क्या? ही कैनॉट टच द फैन प्रॉपरली. पॉसिबल? हाइपरबोल, हाई बोल, एक्स्ट्रा बोल, बहुत एक्स्ट्रा बोल, हाइपरबोल. नेक्स्ट, आई विल ब्रिंग स्टार्स फॉर यू. हिंदी पिक्चर डायलॉग. मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा. अरे कैनॉट क्रॉस सिटी प्रॉपरली. विल यू ब्रिंग स्टार्स? हाइपरबोल. He saw million flower. He doesn't know how many lakhs are in 1 million, but he says million flowers. Next, he ran like a wind. वो तो हवा की तरह भागा. पॉसिबल है क्या? हाइपरबोल, हाइपरबोल. आई हैव टोल्ड इट 1000 टाइम. मम्मी पापा का फेवरेट डायलॉग. मैंने तुझे 1000 बार बोला. 1000 बार कोई बोलता है क्या? हाइपरबोल. सच अ बैटल, ब्लड रैन लाइक वाटर. ऐसी लड़ाई हो गई, खून की नदियां बहती गई. खून की नदियां बहती क्या? बोलने की बात है. हाइपरबोल. माई फीट सीम टू डांस ऑन एयर. मेरे पैर तो ऐसे हवा पे नाच रहे. भूत है क्या? हाइपरबोल. जो बात पॉसिबल नहीं है लेकिन बोली जाती है एग्जैगरेशन करके, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल. फिर क्या लिखने का? हाइपरबोल. आपको रीजन लिखना पड़ेगा. हियर इट इज एन ओवर स्टेटमेंट एंड द आइडिया इज exaggerated. Okay, so once again I repeat, in hyperbole there is an overstatement and idea is exaggerated. Okay, I hope that you must have understood. Okay, let's go for next figure of speech.